ऐसा बंदा भैया उसे जो काम करने बोला है वो करके ला देगा, नो मैटर क्या भी चैलेंजेस आए। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो एज अ फौजी, एज एन ऑफिसर, यही हमें चाहिए। दुश्मन को खत्म करके आओ तो खत्म करके आओ, ब्लडी व्हाटएवर द एक्सक्यूज, मेरे पास हथियार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दैट डोंट वर्क देयर। आपको बोला रुमाल लेके आओ, दुकान बंद है, लॉकडाउन है, जैसे भी है, तो रुमाल का काम क्या? अगर वो रुमाल का काम तौलिए से हो सकता है, तौलिया ला के दे दो, ले भाई मेरा रुमाल ले ले। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो साइकोलॉजी जीटीओ में बंदे को हेल्प कर सकती हैं, जनरल बेसिक लाइफ से ही आती हैं। और भैया ये बात है प्रैक्टिकल लाइफ की जो अप्रोच है, आप डे टू डे लाइफ में कैसे बिहेव करते हो, उसी से बहुत चीजें एसएसबी की मैं बोलूंगा इन्फ्लुएंस होती हैं। लाइफ में बिल्कुल चिल रहना है, शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल के जीना है, और किसी भी सिचुएशन में हो तो सोचना है तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सकें। जय हिंद वन एंड ऑल। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट मृदुल शर्मा. So Mridul, thank you for accepting our invitation to our show, and he is the first guy on our show who has cleared SSB for both NDA and TES. And from this conversation, I hope you guys learn more about TES SSB, because you know in public domain very less is there about TES. सभी को बस इतना नॉलेज है कि ट्रेन भर के जनता आती है और एक दो लोग सेलेक्ट होते हैं। तो आज वही एक दो में से हमारे सामने मृदुल शर्मा है। सो मृदुल शर्मा, कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आकर? थैंक यू भैया, थैंक यू। इट्स बीन एन ऑनर टू कम हियर ऑन योर शो। देखता रहता हूँ मैं पॉडकास्ट, बट खुद पॉडकास्ट में होना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। नहीं नहीं यार, ऑनर इज ऑल माइन। और यू एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन, यू ग्रेस्ड अस विद योर प्रेजेंस and your lovely smile. So I hope people will get to learn. And also I would like to tell all my viewers, he is completely from civil background, cleared NDA SSB in his first attempt, TS SSB in his first attempt without coaching. Okay, so he is the guy who, if you're not taking any coaching and you want to know about SSB, then he is the guy who is supposed to be go to. And also he has cleared TS SSB, which is like almost the toughest SSB in all of the SSB because of the vacancy. So Mridul, please tell the audience about you. Who is Mridul Sharma? What is your hobbies? What do you do? So hello everyone, my name is Mridul Sharma. I am a 12th pass out student and I am recommended for NDA 147 entry and TES 46 entry recently. And in terms of hobbies, I have a general reading books, reading articles on mythology and interests, relating puzzles. I like solving Rubik's Cube and crossword puzzles, Sudoku and all that. So that's pretty much about me. So you'll get to know more about me in this conversation with sir. Great. So Mridul, first NDSSB you went, right? Right, sir. So how did you prepare for SSB? Because you told me that you didn't take any coaching, no coaching whatsoever. Straight Yes, sir. ओरिजिनल मृदुल शर्मा, वो जो उसके दोस्तों के लिए वही वहाँ पे SSB के लिए। So what was the whole procedure? Especially please focus on psychological test and GTO task, because how to prepare that without coaching? Right, sir. So for my NDA SSB, sir, it was my first SSB, and as every fresher, I was completely blank regarding the procedure. So first thing I did was I went onto YouTube and searched about the procedure, what all happens there, what all the procedures are carried on you to take out your personality out of you.
So first of all, the psychological tests. There's a lot of hoax and myths about it, that if you don't answer SRTs well, the TAT should be connected to your life and many things. And most of them are false, obviously. So for psychology test, what I did was, I first of all worked on my handwriting because I have a poor handwriting. So my first aim was, if I write, the psychologist must be able to read it. So I increased my writing speed a bit. And apart from that, sir, I already used to read books. So in terms of my psychology, I cannot bring definite change over a great change over a definite period of time. So simply what I did was, I started self-introspecting myself. Whosoever I am, I will present myself that way. For that, it is very difficult task to self-introspect yourself, sir. So the first thing I did was, I asked my friends, teachers, and my parents what they like about me, what they don't like about me. And believe me, it was some things that my friends told me that I never thought they actually, they wanted to say it like this, and they were like, यार तू नाराज हो जाता, हमने बोला नहीं कभी. And parents are always like, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा. So I gave them a list of weaknesses, what all I do, and most of them were checked. So I was like, अच्छा ठीक है, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं. But yes, that was the first step, how I prepared for psychology. Then some basic weaknesses, like they told me I was lazy, so I overcome it. So it was not a chronic psychological weakness, I would say, but the more related to personality are like, one is not proactive in a situation, one cannot manage difficult situations well. These are some weaknesses that one has to work upon. And to do that, sir, in both psychology and GTO, I would like to say that one has to go out in the world and face the world, because when you put yourself into some situations, then only you will get to know what true essence of SSB is. There are people like who will remain in their homes all day, who will only use Instagram, and they will expect that they will do wonders in GTO tasks. That will never happen, right? You have to get the sabji for your mummy first. After that, you would be able to do something in the GTO. I remember I was small, so my mother sent me to bring gullak. So I went. First, I brought a small gullak. My mother sent me again. I again went. I brought a gullak. There was no hole in it. So I third time went to take the gullak, and that was a lesson. Whatever task you are doing, do it with full concentration. So there are some basic lessons you can learn from life, right? Yeah. So, and not in terms of SSB, I think everyone should do this in their teenage to become a better person at least. See, there's nothing I have to clear SSB and all that, but obviously one should definitely work towards becoming a better person. So, in respect to psychology test, especially, I would like to say, if you don't mind, right, sir. Majority of our audience is Hindi speaking. So if you can speak in Hindi, if you are comfortable, sure. English is fine. No problem, no problem. I'll use Hindi from here on. Yeah. So psychology test में से भैया जो बेसिक चीज है, मैं कुछ नोट कर रखी थी मैंने. For my preparation, I would like to share from my notes directly. Okay. तो लाइफ में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सॉल्व करने से बंदा बहुत कुछ सीख जाता है. सब्जी लेने गए, आपके पास 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो आप कई बंदे होंगे कि छोड़ के आ जाएंगे, चलो कोई नहीं, धनिया नहीं ले रहे. कई बंदे कह रहे भैया कोई बात नहीं, बाद में ले लेना, हम तो रेगुलर कस्टमर है. तो ये कुछ बेसिक चीज होती है जैसे आप ये काम चला सकते हो अपना जीटीओ का, और खुद को एनालाइज कर सकते हो, और इसमें ऑब्वियसली आगे भी बढ़ पाते हो. और अपनी लाइफ से आइडियाज लेने बहुत जरूरी हैं. हमारे दोस्त जाते हैं, 5 रुपए होते हैं हमारे पास, तो हम 20 रुपए की मूंगफली लेके आते हैं कि भैया 15 रुपए बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है. और फिर बैठ के मूंगफलियां खा रहे होते हैं. और वही है, जैसे आप मोमोज वाले के पास जाते हो, इनसे उधार लेना, मुझे मैनेज करना कि अरे दे तो दिए थे भैया, आप क्या बात कर रहे हो, सारा हिसाब चुट्टा है. ये कुछ बेसिक चीज है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि बंदा कैसा है. अगर वो ये सब चीजों में एक्सपर्ट है तो आई कॉल इट स्ट्रीट स्मार्ट. एग्जैक्टली, यार दिमाग में यही चल रहा था. हाँ, ऐसा बंदा भैया, उसे जो काम करने बोला है वो करके ला देगा, नो मैटर क्या भी चैलेंजेस आए. और प्रैक्टिकली देखा जाए तो एज अ फौजी, एज एन ऑफिसर, यही हमें चाहिए. दुश्मन को खत्म करके आओ तो खत्म करके आओ, ब्लडी व्हाटएवर द एक्सक्यूज, मेरे पास हथियार नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, दैट डोंट वर्क देयर. आपको बोला रुमाल लेके आओ, दुकान बंद है, लॉकडाउन है, जैसे भी है, तो रुमाल का काम क्या, अगर वो रुमाल का काम तौलिया से हो सकता है, तौलिया ला के दे दो, ले भाई मेरा रुमाल ले ले. तो ये कुछ बेसिक चीज है जो साइकोलॉजी जीटीओ में बंदे को हेल्प कर सकती है.
जनरल बेसिक लाइफ से ही आती हैं। और भैया ये बात है प्रैक्टिकल लाइफ की जो अप्रोच है, आप डे टू डे लाइफ में कैसे बिहेव करते हो, उसी से बहुत चीजें एसएसबी की मैं बोलूंगा इन्फ्लुएंस होती हैं। लाइफ में बिल्कुल चिल रहना है, शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल के जीना है, और किसी भी सिचुएशन में हो तो सोचना है एक ऑफिसर इसे कैसे टैकल करता। That's it, you have gone through SSB. Yes, you're right. So basically एक साइकोलॉजी, yeah, go ahead. जी भैया, एक साइकोलॉजी टेस्ट में बच्चों की डिमांड आती है कि जैसे स्टोरीज हैं, तो हमें कुछ आइडिया नहीं आया फोटो को देख के, तो हम क्या करें। अब पहली बात तो ये थोड़ा गलत है, अगर आप तुमको फोटो देख के कोई आइडिया नहीं आ रहा तो हम पहले अपनी इमेजिनेशन पे वर्क करो। तो दूसरी बात, अगर तुम्हें फोटो देख के आइडिया नहीं आ रहा तो यू कैन रिलेट इट टू सम लाइफ इंसिडेंट्स ऑफ योर्स, और वो फिर वही लूप बन जाता है ना भैया। जो कभी घर से बाहर नहीं निकला वो क्या लाइफ एक्सपीरियंस रिलेट करेगा, बाथरूम में फिसल गया था। So true. तो ये तो ऑब्वियसली कुछ हो नहीं पाएगा। जैसे मुझे याद है, हम गांव में एक बार गए थे, तो शाम को आंधी तूफान आने लगा, तो एक जो वो था पेड़, वो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस के उस पे गिर गया, और वो ऐसा था कि वो रास्ते में लटक रही थी तारें। अब लाइट गई हुई थी, पर कोई भी ऐसे आएगा बाइक वगैरह से तो उसे पक्का लग जाएगी। तो हमने क्या करा, आसपास में जो थे किसान, उनकी मदद से हमने पेड़ को पीछे खींचा और लाइन ऊपर हो गई, और पेड़ को ऐसे डाल दिया कि वो रास्ता ब्लॉक हो जाए। तो कोई भी आएगा उसे ऑब्वियसली वो पेड़ दिखेगा, वो देख के रुक जाएगा, और ऐसे बात बन जाएगी। और ये स्टोरी मैंने दोनों एसएसबी में लिखी, टीएटी में। तो रियल लाइफ थी, अगर ऐसी, हाँ ये रियल लाइफ थी भैया। ओके ग्रेट, एक्चुअली में हुआ था मेरे साथ। तो अगर ऐसा किसी ने कुछ करा ही नहीं है, कोई बाहर निकला ही नहीं है घर से, तो वो ऑब्वियसली नहीं लिख पाएगा। ओके, सो टू थिंग्स विच आई थिंक जो आई कुड मेक आउट, कि either you write your life experiences or your imagination should be such, and that can only be increased by reading books and all, right? Practical imagination. Yeah, because I seen you read lots of books. What I could make out, that would have helped in your imagination. And probably I also asked these guys, काफ़ी लोग होते हैं जैसे कि सर स्टोरी नहीं बन रही दिमाग में, कुछ और ही लिख के आ जाते हैं। मतलब एक कोई बच्चा बोर्ड देख रहा है तो उनकी स्टोरी ऐसी हो जाएगी कि हाँ वो बच्चा अपना रिजल्ट देखता है, खुश हो जाता है, पार्टी करके आ जाता है, समझ रहे हो? सो थिंग इज़ दैट ओनली कि लाइफ एक्सपीरियंसेस की कमी भी है, और क्योंकि राइटिंग स्किल कभी किया नहीं है और ना कभी पढ़ा है कुछ, तो सोच ही लिमिटेड सी है। सो इसलिए प्लीज़ गाइस स्टार्ट रीडिंग बुक्स इज़ आई थिंक द बेस्ट हैबिट विच आई could do as a cadet and as a student. So that helped me a lot, and same goes for Mridul. So Mridul, please continue what you were saying. जी भैया, एक एसआरटी वगैरह में बच्चे प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होते, पता नहीं कहीं से लिख के आ जाते नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो हर चीज में भी डाल देते हैं। एक एसआरटी था कि आप अपने भाई को साइकिल पे स्टेशन छोड़ने जा रहे हो, रास्ते में लोग बहुत सारे गुस्से में लाठी लेके तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, व्हाट विल यू डू? तो बच्चे लिख रहे हैं हम उनसे लड़ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। साइड हो जाओगे, उन्हें जाने दो यार, वो तुम्हें थोड़ी मारने आए हैं। बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल। कराटे किड देख के आ जाएंगे, आदमी ने तुम्हें बंदूक दिखा रखी है, तुमसे तुम्हारा फोन मांग रहा है, हम उसे पीट देंगे, पुलिस के पास लेके जाएंगे, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ले लेंगे। अरे यार फोन दे दो, उसके पास पिस्तौल है। सही है यार, people and their stories is just amazing, some of them, what all can they think? कई बार जैसे एक्सीडेंट हो रहा होगा रोड पे, तो लिख देंगे ये प्ले चल रहा है, ये रिहर्सल चल रही है। ये बहुत कॉमन है भैया, कुछ स्टोरी समझ में नहीं आ रही, प्ले चल रहा है, कि प्ले ड्रामा कंपटीशन इन सब की चल रही है, पॉजिटिव दिखा, बिल्कुल। सो मृदुल, यू हैव क्लियर TSSSB, राइट? तो NDSSB क्लियर किया, व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड व्हेन यू वर अटेंडिंग TSSSB की? बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग में ये होगा कि हाँ, एवरी गाय हु गेट्स रिकमेंडेड इन NDA डजंट गेट रिकमेंडेड इन TS. It's not, that is not important. Your recommendation is not important. So what all changes you made, and also how is your experience in TS different from NDA? सबसे पहले भैया TSSB जब आई तो मैं तो कॉल लेटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरी जेईई में परसेंटाइल 64 थी और मुझे लगा था मेरे को कॉल नहीं आएगी, बट सरप्राइजिंगली आ गई। Okay. तो I thought okay, कोई बात नहीं। As low as कितना you have seen guy with how many percentage can make? सर हमारे बैच में जो स्क्रीन इन हुआ था उसमें एक बंदा था, उसकी परसेंटाइल 16 थी जेईई में। Okay. And he was there with us. So I don't think ये कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, बस एलिजिबिलिटी है, कट ऑफ कोई क्राइटेरिया नहीं है शायद। Okay.
ओके बट मतलब आई वुड सजेस्ट टू माय व्यूअर्स कि कीप इट अबव 20. आई थिंक बिल्कुल दैट इज बिल्कुल सेफर. इनफैक्ट मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो उतना स्कोर करो। हाँ, मार्क्स लाने में क्या ही जा रहा मार्क्स है। लाने में क्या जा रहा है. सो प्लीज कंटिन्यू. आई कीप ऑन कटिंग इन बिटवीन. जी भैया। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सो बेसिकली मैंने ये सोचा था कि स्क्रीनिंग तक जोर लगाना है, स्क्रीनिंग होना है, और उसके बाद जो 5 दिन एसएसबी के होते हैं उसमें मस्ती करके आनी है, नए दोस्त बना के आने हैं। पूरा उसमें मस्ती करनी है, पूरी हरकतें उल्टी सीधी ये सब करके आना है। ओके रिकमेंडेशन का एजेंट मैंने सोचा नहीं था। इनफैक्ट जब हम उसमें बैठे भी थे कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो चाय पकौड़े थे, जो जिसका हो रहा था कॉन्फ्रेंस वो बाहर से चाय पकौड़े लेके खा सकता था। तो मैं खड़ा खड़ा सोच रहा हूँ यार इसके बाद संगम घूमने जाएंगे, हमारा इलाहाबाद में था। इलाहाबाद यस. मैं सोच रहा था संगम घूमने जाएंगे, ये सर पार्क बता रहे थे वहां घूमने जाएंगे, बढ़िया है, करते हैं प्लान कुछ बढ़िया सा। बट देन फॉर्चुनेटली आई गॉट रिकमेंडेड, तो और उधर रुकना पड़ गया। And how many were anyways, recommended? there were 4 of us recommended भैया। Oh great. And in TS, in NDA? In India there were 8 out of 8. 34. And in TS 4 out of TS 4 out of 20. 20. And how many were screened in? Out of 227, Okay. 20 were screened in. Okay. ठीक है. Well, still not the ratio which we would expect, but still very tough. So नहीं बट ये सरप्राइजिंगली बस हमारे और जो हमसे एक दिन पहले था 18th को जो रिपोर्ट करे थे 18 एसएसबी वाले, उनका और हमारा 4 रेकमेंड हुए थे। उसके बाद एसएसबी ने अपनी जो दिखाई है ना 1 2 1 1 1 1 TS SSB is ruthless. Ruthless. Exactly. Oh God. So हाँ तो डिफरेंस बता रहा था तू दोनों का TS और राइट। इंडिया एसएसबी में इन टर्म्स ऑफ सेंटर मेरा गुवाहाटी था एयरफोर्स के लिए। Okay. तो वो एक नया सेंटर है, तो वहाँ क्या था रूम्स बनाए हुए थे और Okay. रूम्स में 10-10 बच्चे रह रहे थे। तो इट वाज लाइक कोरोना चल रहा था, पीक टाइम था, तो हमें खाना रूम्स में मिल रहा था। Okay. और रूम से बाहर नहीं जा सकते थे, कोई स्पोर्ट्स वगैरह नहीं थे। Okay. और इधर इलाहाबाद में ऑब्वियसली हमारी डॉर्मेट्री थी और खेल भी सकते थे, बाहर भी जा सकते थे, मेस जाना था अलग से। Okay. ये तो हुआ सेंटर का डिफरेंस। Okay. बाकी मेन एसएसबी में डिफरेंस ऑब्वियसली जो रेशियो आपने बताया, टीएस का रूथलेस होता है, बहुत कम रेकमेंड होते हैं, और वो थोड़ा लॉजिकल भी है। जब वैकेंसी कम है तो ऑब्वियसली वो सबको थोड़ी रेकमेंड कर सकते हैं। उनके हाथ में भी थोड़ा वो है, दे हैव टू churn out the best out of the best. Okay. So And मृदुल एक बच्चा है, ठीक है, लेट इट बी एक्स. right. So अगर वो एक्स को he doesn't have resources, he doesn't have coaching academy, he doesn't have anything, so what would be your recommendation to him? How should that guy who doesn't have any coaching should prepare for SSB? And please tell in a short term perspective. लॉन्ग टर्म में वी कैन वर्क ऑन पर्सनैलिटी, बट अगर जैसे 1 महीने 2 महीने बाद SSB है, जनरली दैट इज द केस कि 1-2 महीने बाद SSB है, क्या करेगा? सो हाउ शुड वन गो अबाउट इट? नंबर 1 टू अंडरस्टैंड एसएसबी आपकी पॉडकास्ट देख ले, एंड नंबर 2 लाइक शेयर सब्सक्राइब. लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड नंबर 2 भैया, क्योंकि एसएसबी में आप कितने भी अच्छे हो, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, खुद को बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कुछ फायदा नहीं है। तो इतने शॉर्ट टर्म में 1-2 महीने आपने बोला, वो सबसे पहले कम्युनिकेशन पे अपना काम करे कि वो जो पॉइंट है उसका फर्मली रख पाए दूसरे के सामने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। और any resources which he can use, books, videos, how did you prepare, which videos you watched, which books did you read? वीडियो मैंने ऐसे ज्यादा नहीं देखी थी, बस बेसिक ये सब पॉडकास्ट वगैरह में पहले से देखते रहता था। ओके। आपकी अभी रिसेंटली डिस्कवर करी, थोड़ी और डिफेंस एस्पेक्ट्स के लिए कोई पॉडकास्ट अभी तक होती नहीं थी, एंड यू केम अप विद द सॉल्यूशन, तो थैंक यू फॉर दैट। तो एक तो ये पॉडकास्ट का सिस्टम हो गया, तो इससे क्या है, दूसरे के एक्सपीरियंस से आप जितना सीख सकते हो ना उतना बेटर है। क्योंकि मैं आज भी गाँव जाता हूँ, दादा दादी से बात करता हूँ, तो उनके एक्सपीरियंसेस अलग ही होते हैं, और जितनी लाइफ उन्होंने देखी है, जितना स्ट्रगल उन्होंने करा है, उतने आजकल के बच्चे कर ही नहीं सकते। दे आर वेरी प्रिविलेज्ड। उनके पास एक आजकल गरीब भी बच्चा, उसके पास एटलीस्ट फोन तो होगा, उनके टाइम में तो वो भी नहीं था, एंड ऑब्वियसली उनका स्ट्रगल अलग ही था। अपार्ट फ्रॉम दिस भी आप बुक्स वो पढ़ सकते हो ऑब्वियसली, इन टर्म्स ऑफ एनहांसिंग पर्सनालिटी, सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत सारी आती हैं। और कई लोग मुझे बोलते हैं बुक्स कौन सी पढ़े, हमें इंटरेस्ट ही नहीं आता बुक्स पढ़ने में, तो
आई वुड लाइक टू से टू देम, जो आपका इंटरेस्ट गाड़ियों में है, आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, आपका इंटरेस्ट आर्मी में है, तो उसके रिलेटेड बुक्स पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बुक्स रीडिंग शायद माइथोलॉजी से करी थी सबसे पहले। आई रेड गीता। जब लॉकडाउन था तो महाभारत गीता चली थी टीवी पे, तो आई पिक्ड अप गीता, व्हाई नॉट रीड इट। तो मैंने पढ़ी थी गीता, तो इससे मुझे बहुत इंटरव्यू में भी हेल्प हुई। और ऑब्वियसली उन्होंने चैलेंज तो करे कि कहाँ लिखा है गीता पढ़ने से, तुम बुक पढ़ने बोलोगे, लिखोगे पीआईक्यू में, तो तुम्हें हम रेकमेंड कर देंगे। ऐसे करके बहुत उन्होंने खिंचाई करी थी। बट एनीवेज, इट्स देयर जॉब। I also agree with you. So basically, guys, what I could make out from the last few minutes of our conversation is कि if you want to prepare for SSB, first do a self introspection कि where do you lack, and start working with communication skills. Stop asking people कि यार हिंदी में क्लियर होता है SSB या नहीं, ठीक है? एज ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर यू हैव सीन इन इंडियन आर्मी who speaks in Hindi only? In academy, English is compulsory while talking to seniors. So, start talking, start improving. If you are weak in English, work on that. If you're weak in imagination, writing stories, start reading books. Like Mridul has said, he used to read mythological books because he was interested in that. I personally was never interested in mythological books, so I read, military history. I was a very avid reader. So if you can, see my collection, so this is only half of it, and rest half is in my father's room, and I have a Kindle also. That is also completely filled. So, you see, you have to start making changes in real life in order to get recommended. There is no shortcut. Coaching academy wale, they can tell you what to do, what not to do, but they can't change your personality. At the end of the day, it's you who's going to write those stories. It's you who's going to make those solutions for those obstacles. So मृदुल, जैसे GTO टास्क है, GTO टास्क में ऑनलाइन इन्वायरमेंट है आजकल सारा, पीपल आर गोइंग देयर विदाउट कोचिंग जनरली. सो ऑनलाइन में हाउ कैन वन प्रिपेयर फॉर वो रस्सी फटा बल्ले वाले जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं? हाउ कैन वन प्रिपेयर फॉर दैट? सर एग्जैक्टली वो रेप्लिकेट करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, स्पेशली ऑनलाइन पार्ट में. यस. बट वही जैसे मैंने बोला कि आप लाइव सिचुएशंस को ऑल्टर कर सकते हो, थोड़ा चैलेंजिंग बना सकते हो. आप ऐसे जैसे कुछ काम होते हैं, मम्मी करती है, मम्मी के साथ किचन में हेल्प करते हो तो बहुत सीखने को मिलता है. अभी कल परसों की बात है, तो मम्मी ने बोला इसमें उसमें रायते में नमक डाल दे. मैं बोला कौन सा, काला या सफेद? मम्मी कह रही कोई भी डाल दे, एक ही होता है. मैंने काला नमक डाल दिया. मम्मी ने टेस्ट करके देखा, कह रहे फिक्का है. मम्मी ने मुझे रैप्टा मार दिया एक. कह रहे नमक नहीं डालना आ रहा, ये है वो है, ये है वो है. ये कुछ बेसिक चीज आप घर से ही सीख सकते हो. हाँ, वो मतलब बट फट्टी बल्ला वाला रेप्लिकेट करना मुश्किल है. बट ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते. आप पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, बहन भाई की हेल्प कर सकते हो. मैंने देखा, मैं अपनी बहन को पढ़ाऊंगा तो मैं अपना टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर देता हूँ. सो आई रियलाइज कि अगर मैं ऐसा सही में रहा तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, किसी को सिखा ही नहीं पाऊंगा. मुझे थोड़ा शांत होकर सिखाना पड़ेगा. अब सीख सकते हो, घर में भी सीख सकते हो. ऐसा नहीं है एवरीथिंग इज ओवर. Great. There are plenty of options are there. So guys, this is the first part of our conversation with Sharma. So few things in the end which I would like to tell you is that no matter, you must have noticed for the last 20 minutes and odd 20 minutes that whatever question I asked them, in all of his questions reply was generally the same, that make personality changes, make real life situations में तुम changes लाओ, be it GTO, be it psychological. So that was the way that he prepared for it. He made changes in real life rather than on paper and all. So I would like to suggest कि you stay to what this guy is saying, and if you want to prepare, start reading books. ठीक है? Lots of content available on the net, lots of videos for GTOs and all. आजकल कोचिंग अकेडमी ना, दे हैव मेड लाइक लिटरली वीडियोस बनाते हैं कि ये टास्क ऐसे करना है, ये टास्क ऐसे करना है, कैंटिलीवर ऐसे बनाना है. सो just watch that, man, or that's the best you can do in this online environment if you can't practice on the ground. So thank you, Mridul, for such wonderful insight. And for any guy who doesn't want to take coaching, and he is the man about whom you should listen, because he has cleared both the SSBs.
So due respect to be given to this guy. So that too, without coaching, and probably TS may he will be in double digit only or single digit. Let's hope so, because vacancies तो उतनी ही होती हैं. So thank you Mridul, and guys, stay tuned for our second part. Second part would be about what he said कि TS में he did masti. TSSB was all masti, 5 days, nothing much. So we'll talk about that. Plus, we will figure out something else also. I have a surprise for you. Jai Hind.